Welcome to the first session on Roman numbers. Now, Roman numbers, or rather Roman numerals, these are the very older system. Basically, was designed for the business and trade, for the exchange of goods. It was one of the early system of writing numerals in the system of Roman numerals. There are 7 basic symbols for writing any number, and these symbols were I, which is 1, V, which is 5, X, which is 10, L, 50, C, 100, D, 500, and M, 1000. These are the 7 basic symbols of Roman numerals. Let us now go ahead and understand what are the rules of writing any number according to the Roman numeral system. Moving further, if a bar is placed over a numeral, it is multiplied by 1000. अगर किसी भी सिंबल के ऊपर हमने एक बार लगा दिया, ऐसी एक लाइन लगा दी, तो हमें उसकी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. फॉर एग्जाम्पल v वैल्यू इज 5, बट द मोमेंट आप उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, इस तरह की एक लाइन लगा देते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, which will become 5000. Similarly, the value of x is 10, पर अगर आप उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, it will become 10 multiplied by 1000, which is 10,000. This is the meaning of the bar. वैसे ये बार वाला कॉन्सेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो हमें नहीं पूछा जाएगा, पर आप अपने जनरल नॉलेज के लिए ये जानिए. Now let us go ahead and understand the various rules of writing the Roman numeral. Rule number 1, which is also the rule of repetition. It says that repetition of a symbol in Roman numeral means addition. If you repeat a symbol, it means we are going to add their values. But there are some points associated here. Can we repeat all the symbols? No, we cannot repeat all the symbols. We can repeat only I, which is 10. We can repeat X, sorry. Now let us go ahead and understand the rules of Roman symbols. The first rule says the rule of repetition. Repetition of a symbol in Roman numeral means we have to do the addition or we have to add their values. But can we repeat all the symbols? No. We cannot repeat all the symbols. We can repeat only I, which is 1, X, which is 10, C, which is 100, and M, which is 1000. Only these symbols can be repeated. You cannot repeat any other symbol other than these. Second point, this says that V, L, and D. Remember, V is 5, L is 50, and D is 500. The symbols which start with 5, they cannot be repeated. The symbols which start with 1, say 1, 10, 100, and 1000, only they can be repeated. Further, they say that no symbol in a Roman numeral can be repeated more than 3 times. किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते. और जब भी हम रिपीट करेंगे I, X, C और M को, रिपीटेशन का मतलब होगा कि उनकी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे. Suppose you are writing X, X, and X 3 times. So its value will be 10, 10, and 10, which will be added, which will give us 10 plus 10 plus 10, which is 30. And look at an example. I is 1 plus 1. Here I is repeated 2 times. So
So we'll add the values. 1 plus 1, its value is 2. X and X. Repeat it 2 times. We'll add the values. 10 plus 10, it will be 20. X and X is 10 plus 10 plus 10 is 30. So repetition means addition. C and C. C is 100. 100 and 100 will be 100 plus 100, 200. Repetition means we will add the values of the symbols. Now coming to the second rule, which is the rule of addition. Remember, a smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral. इसका मतलब यह है कि अगर पहले हमारा एक ग्रेटर सिंबल आ जाए और उसके बाद हमारा स्मॉलर सिंबल आ जाए तो हमें इनकी वैल्यू को प्लस करना होगा. Let us understand through an example. First example, vi. vi में v की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 है. ग्रेटर सिंबल के बाद अगर स्मॉलर सिंबल आ जाए तो उनकी वैल्यूज को प्लस कर दीजिए. vi will become 5 plus 1 6. सेकेंड एग्जाम्पल, v v 5 होता है, i are 1 each. अच्छा, यहां पर i तो रिपीटिशन के रूल को फॉलो करेंगे तो वो आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन 5 ग्रेटर सिंबल के बाद ये सारे स्मॉलर सिंबल आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू प्लस कर देंगे. वी विल गेट 8. सिमिलरली x and v, x value is 10, v value is 5. आफ्टर अ ग्रेटर सिंबल कम्स अ स्मॉलर सिंबल. तो अगर ग्रेटर सिंबल के राइट में स्मॉलर सिंबल आ जाए तो हम उनकी वैल्यू को प्लस कर देंगे. इट विल बी 10 plus 5 15. सिमिलरली lx, l की वैल्यू 50 होती है, x की वैल्यू 10 होती है. ग्रेटर सिंबल के बाद एक स्मॉलर सिंबल आया है तो हमें इनकी वैल्यू को प्लस करना होगा. 10 की वैल्यू को 50 में प्लस करेंगे, विल गेट 60. रूल ऑफ एडिशन. नेक्स्ट इज द रूल नंबर 3. Now rule number 3 says if a smaller numeral written to the left of a larger numeral, it is always subtracted from the larger numeral. It is a rule of subtraction, very important, कि अगर पहले स्मॉलर न्यूमरल आ जाए और उसके बाद में ग्रेटर सिंबल आ जाए, पहले एक स्मॉलर सिंबल हो उसके बाद में एक ग्रेटर सिंबल हो, या फिर ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर सिंबल आ जाए तो इनकी वैल्यू को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. ग्रेटर सिंबल में से स्मॉलर सिंबल की वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. Now here also there are some rules. What are the rules? Rules इसमें यह है कि पहला V, L and D. Remember V, L and D. V is 5, L is 50 and D is 500. इनको हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते. We cannot subtract them. हम किनको माइनस कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट दिस है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली. आपको एक चीज याद रखनी है कि आई जो है वो अपने नेक्स्ट अगले दो सिंबल से माइनस हो सकता है. मतलब 1, 5 और 10 से माइनस हो सकता है. मींस आई वी और एक्स से माइनस हो सकता है और किसी से भी आप उसे माइनस नहीं कर सकते. अपने नेक्स्ट 2 सिंबल याद रखने के हिसाब से कि 1 जो है नेक्स्ट 2 सिंबल 5 और 10 से ही माइनस होगा. नेक्स्ट x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली. x जो कि 10 है वो अपने नेक्स्ट 2 सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट होगा, 50 से और 100 से. मींस x जो है वो l से सब्ट्रैक्ट होगा और c से सब्ट्रैक्ट होगा, वो और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ऐसा करने पर वो रोमन नंबर गलत हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा. एंड लास्ट दिस इज c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली. c को अपने नेक्स्ट 2 सिंबल्स d और m से ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मींस 100 को हम 500 और 1000 से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड सम रूल्स. Now here there are some examples to understand the rule of subtraction. The first example is I and V. I is 1, which is a smaller symbol. V is 5, which is a greater symbol. So remember, when a smaller symbol comes to the left side of a greater symbol, its value will be subtracted. तो हम यहाँ पर 5 minus 1 इसकी वैल्यू कर देंगे 5 minus 1, which is 4. So IV value will be 4. Similarly, I and X. I value is 1, X value is 10. Now you can see that a smaller symbol is on the left hand side of the greater symbol. एक I जो है स्मॉलर सिंबल है जो X के लेफ्ट हैंड साइड में आया है जो कि ग्रेटर सिंबल है. तो हम ऐसा इसको समझ सकते हैं कि अगर पहले स्मॉलर सिंबल और उसके बाद अगर ग्रेटर सिंबल आ जाए तो उनकी वैल्यू हमें माइनस करनी होगी. दिस विल बी 10 minus 1, which is 9.
Now moving on to the rule number 4. Rule number 4 is not a rule actually. This has been derived from the 3 rules. This says when a smaller numeral is placed between two larger numerals, अगर एक छोटा symbol हम दो बड़े symbols के बीच में डाल देंगे, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it. तो उसके right side में जो numeral है उससे उसकी value को हमें minus करना होगा. Let us understand this through an example. एक example से हम इसे समझते हैं. Let's take an example of x I v. Now here x is 10, I is 1 and v is 5. आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ग्रेटर सिंबल 10 और 5 के बीच में 1 आ गया है. सो द रूल सेज कि अगर दो ग्रेटर सिंबल्स के बीच में एक स्मॉलर सिंबल आ जाए, जैसे यहाँ पर x और v के बीच में i आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो हमें i की वैल्यू को उसके राइट साइड वाले सिंबल से माइनस करना होगा. सो दिस विल बिकम 10. रिमेंबर 10 को तो हमें प्लस ही करना है, 10 की जो वैल्यू है वो प्लस होगी, लेकिन i और v मतलब 1 और 5 ये दोनों माइनस हो जाएंगे. 5 माइनस 1 कर दीजिए, जिसको ये हो जाएगा 4, और इन दोनों को आपको प्लस करना है, 10 प्लस 4. दिस विल गिव यू द वैल्यू एज 14. तो अगर दो बड़े सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल आ जाए, तो छोटे सिंबल के राइट साइड में जो सिंबल होगा उससे उसकी वैल्यू को हमें माइनस करना होगा. Let's take another example. Say x I x. Now x is 10, I is 1 and x is 10. Now again I see कि दो बड़े सिंबल्स x और x के बीच में एक छोटा सिंबल i आ गया है, 1 आ गया है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि हमें पहला जो x है इसकी वैल्यू को तो 10 को प्लस करना है, लेकिन अगला i और x इन दोनों को माइनस करना होगा. 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा, और फाइनली इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू 19 आ जाएगी. दिस इज द रूल सेज, एक्चुअली डिराइव्ड रूल है, ये एक्चुअल रूल नहीं है कि अगर एक स्मॉलर न्यूमरल आ जाए दो बड़े न्यूमरल के बीच में तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी. किससे माइनस हो जाएगी? राइट साइड वाले न्यूमरल से उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे. नाउ लेट अस go ahead and solve a problem. Says a student made a mistake while writing a Roman numeral 495. एक स्टूडेंट ने रोमन न्यूमरल को लिखते समय एक मिस्टेक कर दी. 495 उसे लिखना था. He wrote it as CDCXV. How will you correct the mistake? So first of all, let us understand how to write 495. For writing 495, what I will do is I will break it down into 400 plus 90 plus 5. Now 400 can be written as 500 minus 100 plus 90 can be written as 100 minus 10 plus 5 is can be directly written as 5. Now बच्चों अगर हमें 500 minus 100 करना है तो जो स्मॉलर सिंबल होता है माइनस अगर करना है तो स्मॉलर सिंबल 100 हमें पहले लिखना होगा, और 100 का सिंबल होता है C, और ग्रेटर सिंबल 500 हमें बाद में लिखना होगा. 500 का सिंबल होता है D. तो इसमें हमें क्या करना होगा, अगर 400 वैल्यू चाहिए तो हमें 500 माइनस 100 लेना होगा, और माइनस करने के लिए हमें 100 स्मॉलर सिंबल को लेफ्ट साइड में रखना होगा, मतलब पहले रखना होगा, और ग्रेटर सिंबल 500 हमें बाद में रखना होगा. सिमिलरली 90 के लिए भी हमें स्मॉलर सिंबल 10 को पहले रखना होगा विच इज x, एंड ग्रेटर सिंबल 100 हमें बाद में रखना होगा विच इज C. नाउ 5 इज सिंपल, वो तो सिंपल v हो जाएगा. सो 495 एक्चुअली स्टूडेंट को जो लिखना था वो होना चाहिए था CDXCV. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. So the correct representation of 495 should be CD XCV. Now understand that what are the options given here, how to correct the mistake. अच्छा इन्होंने एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है CD CXV. The student has written this and this is the correct answer which we have found out. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये C और X की जो पोजीशन है वो थोड़ी गलत हो गई है. यहाँ पर X को इन्हें मिडिल में लाना होगा और C को इन्हें X के पोजीशन पर ले जाना होगा.
लेट अस चेक व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन. C शुड बी रिप्लेस्ड बाय L. नो, सी इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन्हें इंटरचेंज करना है. X शुड बी रिप्लेस्ड बाय C. नो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. मिडिल लेटर शुड बी इंटरचेंज्ड बाय द नेक्स्ट लेटर. दैट इज द आंसर. मिडिल लेटर यहां पर X है और जो स्टूडेंट ने रॉन्ग लिखा है वो C है. ये मिडिल लेटर हो गया C, और C को उसके नेक्स्ट लेटर X से हमें इंटरचेंज करना होगा. मींस X को हमें C की जगह पर और C को X की जगह पर लेना होगा. तो ये हमारा करेक्ट आंसर 495 आ जाएगा. So this will be our answer. फोर्थ ऑप्शन दिया है मिडिल लेटर शुड बी इंटरचेंज बाय द लास्ट लेटर. नो, दैट विल बी रॉन्ग. C को V से हमें एक्सचेंज नहीं करना, हमें C को X से एक्सचेंज करना है, उसके नेक्स्ट लेटर से एक्सचेंज करना है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C.